Hello students, welcome back to our YouTube channel Empower Education and this is Neha Sotaria, mathematics teacher. So I hope all of you are safe and आप बहुत खुद की हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे. Okay students, so आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी लेसन का नेक्स्ट पार्ट 10th स्टैंडर्ड SSC मैथ्स पेपर 1. So in previous session we have seen practice set 5.1. We have also solved some examples from that practice set. And in today's session, we will solve examples from practice set 5.2. Okay. So previous part के अगर कुछ examples आपको नहीं आ रहे तो आप खुद practice करके देख सकते हो. And you can also ask me your queries. And in next session we will solve those questions. Okay. So let's start for the today's session. Okay. So 5.2 practice set के examples हम solve करने वाले हैं आज के session में. So सबसे पहले हम देखेंगे definition, important definition of sample space. In previous session we have seen what is probability, we have also seen what is random experiment, what are outcomes, what is the result of any random experiment. So in today's session we will particularly see the definition sample space, and depending upon this definition we will solve examples from practice set. So what is sample space? The set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. तो हमने देखा है कि पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं कौन से भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, एंड हाउ वी विल राइट दोस पॉसिबल एक्सपेरिमेंट, दैट इज आउटकम्स. सो सेट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल रिजल्ट्स और सेट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल आउटकम्स इज नथिंग बट अ सैंपल स्पेस. सो जितने भी रिजल्ट्स हमें कौन से भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे उन सब रिजल्ट्स का हम क्या करेंगे, एक सेट फॉर्म करेंगे, एंड एवरी एलिमेंट और एवरी रिजल्ट वी विल डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ सेट बाय यूजिंग कॉमास इन बिटवीन देम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस. Okay, I hope आपको सबको definition समझ में आ गई है. Now, how to denote this sample space? So it is denoted by capital letter S or letter omega. So आपको पता है omega ये Greek letter है, आप physics में भी use करते होंगे. So every sample space we will denote by capital letter S. Now, next part, each element of a sample space. So what is each element of a sample space? Each element of a sample space means result. जितने भी results होंगे कौन सी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो उसके हर एक रिजल्ट को हम कहेंगे एलिमेंट. एंड हाउ टू डिनोट दिस एलिमेंट? वी विल डिनोट ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस और वी विल कॉल इट एज अ सैंपल पॉइंट. सो सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट जो है उसको हम कहेंगे सैंपल पॉइंट. नाउ नेक्स्ट, हाउ टू डिनोट द number of elements in the sample space. So the number of elements in sample space S is denoted by n of S. N stands for number and S stands for sample space. So n in bracket capital S is nothing but number of elements present in the given sample space. और experiment करने के बाद जब भी हम sample space लिखेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कितने number of elements है, कितने number of possible outcomes और results हमें इस random experiment के लिए मिले हैं, so वो हम denote करेंगे n of S. That is, we have to count those number of elements and we have to write that number. Okay, now if n of S is finite, then the sample space is said to be finite space. So what is finite space? Finite set. So कौन से भी set में if we can count the number of elements present in the given set, then that set is called as a finite. Otherwise it is called as a infinite set. So जब भी हम कौन सा भी sample space लिखेंगे कौन से भी random experiment के लिए, so उसके बाद हम क्या करेंगे, number of elements लिखेंगे. So number of elements अगर finite आ रहे मतलब वो set भी क्या है, finite. If you can count the number of elements present in the sample space for given random experiment, then that set is called as a finite sample space. Okay, so I hope all of you understood these important points regarding sample space. Now we will see some examples of a sample space, and these examples are already given in your textbook. Just we will go through it. And क्यों देखने हैं examples? क्योंकि जब भी आप कौन सा भी random experiment के लिए आप sample space लिखोगे, so these examples will help you to find the number of elements to find or how to write the sample space. So these examples will help you to write the sample spaces. Okay. So see what are the examples. So पहला random experiment है, one coin is tossed, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हर एक जो example हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हर एक example के लिए we will write that experiment, we will write its sample space and we will also denote number of elements present in that sample space. Okay, so see first experiment is one coin is tossed. अगर कौन सा भी coin आपके पास है, आपको पता है coin क्या होता है, और उसपे दोनों साइड पे एक हम फर्स्ट साइड को उसको और कौन सा भी साइड को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं पहले, और कौन सा भी कॉइन अगर हमने टॉस किया तो कौन सी दो पॉसिबिलिटीज है हमारे, अदर हेड और टेल. ओके, सो हर एक कॉइन के लिए ये दो ही पॉसिबिलिटीज होती है,
तो कॉइन टॉस करने के बाद आप सैंपल स्पेस को कैसे लिखोगे, S इक्वल टू इंटू करली ब्रेसेस H कॉमा कैपिटल T, मींस H कैपिटल एंड T कैपिटल, H फॉर हेड and T for tail. Okay, so now we will count the number of elements in the sample space. So that is n of S equal to 2. Okay, so similarly अगर आपने दो कॉइन्स टॉस किए, दो कॉइन अगर आपने हाथ में ले लिए और दो कॉइन्स टॉस किए, तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स और कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपको मिलने वाले, तो हर एक रिजल्ट आपको मेंशन करना है सैंपल स्पेस में. ओके, तो कौन कौन सी रिजल्ट आ सकता है, अगर दोनों कॉइन पे टॉस करने के बाद अगर हेड आ गया तो आप लिखोगे एच एच. अगर पहले कॉइन पे एच आ गया, दूसरे कॉइन पे टी आ गया, सो यू विल राइट एच टी. और सिमिलरली फॉर अदर केसेस, पहले कॉइन पे टी आ सकता है, कभी पहले कॉइन पे एच आ सकता है. एंड हर एक पॉसिबिलिटी जो पहले कॉइन के लिए आ रही है, सेम पॉसिबिलिटी आने वाली है सेकेंड कॉइन के लिए. लेकिन हर एक कॉइन के पहले पॉसिबिलिटी और दूसरे पॉसिबिलिटी के साथ आपको रिलेट करना है दूसरे कॉइन के हर एक पॉसिबिलिटी से. एंड इन दिस वे यू विल राइट every element in the sample space. So in this way we will write the sample space S equal to HH, HT, TH and TT. Now see, दोनों coins, both coins we are tossing at the same time. So दोनों के जो दोनों possibilities है, मतलब एक टाइम पे एक दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, पहले कॉइन के लिए दूसरे कॉइन के लिए, तो दोनों को एक साथ लिखना है. आप चेक करके देख सकते हो, पहले क्वेश्चन, पहला जो एग्जांपल हमने देखा तो उसमें H कॉमा T लिखा, मतलब एक कॉइन टॉस किया, उसके बाद दूसरा कॉइन टॉस, फिर से वो कॉइन टॉस किया. लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ टॉस करे, सो दोनों के पॉसिबिलिटीज हमें एक साथ मेंशन करने, एंड वी हैव टू आल्सो राइट ऑल रिमेनिंग पॉसिबल आउटकम्स. सो HH, HT, TH and TT. So every element in the sample space we will write with the help of commas in between them, and we will write every element with the help of curly braces. Okay, so how many number of elements we will get for this sample space, और कितने elements रहेंगे, that is 4. You can count it 1 2 3 4. So in this way for this experiment we will get n of s equal to 4. Similarly 3 coins are tossed. अगर आपने पहले एक्सपेरिमेंट में 2 कॉइन्स लिए, 3 कॉइन्स आपको लेने, तो पहले कॉइन के लिए पॉसिबिलिटीज है HT, दूसरे कॉइन के लिए भी सेम और तीसरे कॉइन के लिए भी सेम. तो तीनों कॉइन्स आपको एक साथ टॉस करने, और तीनों का जो आउटकम है आपको एक साथ लिखना है, और अलग अलग, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज वी हैव टू राइट. सो सबसे पहले आपको मिल जाएगा HHH, देन HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH and TTT. So all possible outcomes we have to write for the sample space of our random experiment. 3 coins are tossed. Okay, so how many possibilities are there? Now कितने results हमें मिल गए, that is number of elements in the sample space, that is 8. Okay, now a die is thrown. आप जब आप लास्ट सेशन में भी हमने देखा कि जब हम लूडो खेलते तब हम डाई का यूज करते. अगर आपने कभी भी डाई थ्रो किया और रोल किया, तो आपको कौन से पॉसिबिलिटीज मिलने वाले हैं, जितने नंबर्स उस हर एक उस डाई के हर एक फेस पे है, हर एक जो उसका यस हर एक फेस पे है, तो वो नंबर्स मतलब क्या होंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है हर एक सरफेस पे. ओके, so the numbers are 1 2 3 4 5 and 6. So 6 numbers are there. So you will write the sample space S equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6, and these numbers you will write in the curly braces. So this is the possible outcome and these are the possible outcomes, and this is the sample space. So number of elements are, अगर possibility 6 है तो number of elements or number of points in the sample space, that is 6. Okay, similarly we will go to the next example. Yes, अब एक डाई थ्रो करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने पॉसिबिलिटीज आने वाले, कितने आउटकम्स आने वाले. सिमिलरली अगर 2 डाइस अगर आपने थ्रो किए, रोल किए, तो कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे. देखो जैसे कॉइन के लिए हमने देखा, हर एक कॉइन की पॉसिबिलिटी हमने ले लिए जब 3 कॉइन्स हमने टॉस किए. तो यहाँ पे 2 डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो पहले डाई की हर एक पॉसिबिलिटी हम ले लेंगे दूसरे डाई के हर एक पॉसिबिलिटी के साथ. सो 1 विल बी विथ 1 2 3 4 5 6. 2 possibility for first die will be with 1 2 3 4 5 6 with all possibilities of the second die. In this way you will write these outcomes and you will write the sample space. So 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. In this way we will write for all the numbers for all the possibilities for both the dies. Okay, so in this way we have written the sample space. और ये जो है वो ऑर्डर पेयर से दोनों कॉइन्स, दोनों डाइस के जो पॉसिबिलिटीज है वो हम एक साथ लिख रहे हैं. So elements in the sample space are nothing but the order pairs. Okay, so कितने possibilities है हमारे पास? You can also count first row में 6, second row में 6. In this way total 6 rows are there. So 6 into 6,
36. So number of possibilities or number of elements present in the sample space, that is 36. Okay. Now the next one, see, next one, sixth example हम देख रहे हैं. A card is drawn from a pack bearing numbers from 1 to 25. So 25 numbers हमें लिखने हैं और ऐसे कार्ड्स बनाने हमें. तो हर एक कार्ड पे एक नंबर होगा. सो सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? नंबर्स को बस लिखना है हमें with the help of curly braces 1 2 3 4 up to 25. So how many number of possibilities or how many number of elements will be there in the sample space? 25. If we are going to take any card at a random or randomly, if we are going to choose any card from pack of 25 cards, and every card contain one number or every card has one number on its face, so the possibilities are 25. Okay, क्योंकि 25 नंबर तक ही हमने क्या किया, वो कार्ड्स को फॉर्म किया. Now the last one, seventh example, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. हमें पता है 52 playing cards क्या होते हैं. हमने लास्ट सेशन में भी जब हमने एग्जांपल सॉल्व किए 5.1 के, that time also we have seen one example regarding these playing cards. So देखो, we know there are 4 types of cards present in the pack of 52 playing cards. डायमंड के होते हैं कार्ड्स, देन स्पेड के होते हैं, हार्ट के होते हैं, एंड देन क्लब के. सो एवरी टाइप के जो होते हैं वो कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? हमें पता है कि 13 कार्ड्स होते हैं. सो डायमंड के एस 2 3 4 5 6 देन 8 9 10 जैक क्वीन किंग. सिमिलरली फॉर अदर टाइप्स आल्सो. सो टोटल हर एक टाइप के अगर 13 कार्ड्स है और देयर आर टोटल 4 टाइप्स, सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी 52. 13 into 4 that is 52. ओके, सो ये एग्जांपल्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे जब आप सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल सॉल्व करोगे. Okay, I hope all of you understood all these examples very well. So we will go to the next part. Okay, so let us remember now which points we are going, which we have to keep in mind when we are going to solve any example regarding sample space. So the first point is the sample space for a coin tossed twice is the same as that of the two coins tossed simultaneously. The same is true for 3 coins. जब भी हम दो कॉइन्स जो है वो साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, अभी हमने एग्जांपल भी देखा, तो उसके लिए जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ आउटकम्स यू विल गेट व्हेन यू विल टॉस एनी कॉइन फॉर 2 टाइम्स. ओके, सो दे हैव सेड हियर द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस ट्वाइस. कौन सा भी एक कॉइन अपने ले लिया तो 2 बार टॉस किया, तो उसके लिए जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आने वाले हैं, सेम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगे जब आप 2 कॉइन्स एट अ टाइम टॉस करोगे. ओके, सो दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड सेम कंडीशन यू कैन अप्लाई फॉर 3 कॉइन्स. मतलब एक कॉइन 3 बार टॉस करने के बाद जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगे व्हेन यू विल टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, the sample space for a die rolled twice is same as 2 dice rolled simultaneously. जैसे आपने कॉइन के लिए देखा, सेम हम डाई के लिए यूज कर सकते हैं. एक डाई अगर आपने 2 बार रोल किया, 2 बार थ्रो किया, तो जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यू विल गेट व्हेन यू विल थ्रो 2 dice simultaneously. Okay, so these points you have to keep in mind while solving examples regarding sample space. So now let us start for practice set 5.2. प्रैक्टिस सेट 5.2 के जो भी कोई क्वेश्चंस आपको दिए टेक्स्ट बुक में, all these questions we will see in this session. Okay, so see what is the first example. For each of the following experiments, write sample space S and the number of sample points n of S. तो जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस S and number of sample points in the sample space. Okay, so see what is the first example. 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. अब हमें क्या करना है? एक कॉइन हमें लेना है, उसके साथ हमें लेना है एक डाई, और दोनों जो है हमें एट अ टाइम क्या करने? थ्रो करने. सो वी नो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर coin, or when we will throw or toss any coins, there are 2 possibilities, either head will come or tail will come. Similarly, when 1 die will be thrown, so what are the possibilities? 1 to 6 numbers will be there, or 1 to 6 numbers we will get as a outcome. So दोनों को एक साथ टॉस करने के बाद और दोनों को एक साथ थ्रो करने के बाद कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आएंगे? तो कॉइन के हर एक पॉसिबिलिटी के साथ हमें रिलेट करना है, हमें कनेक्ट करना है डाई की हर एक पॉसिबिलिटी के साथ. सो हाउ वी विल राइट अ सैंपल स्पेस? सी सॉल्यूशन वी विल राइट सैंपल स्पेस S इक्वल टू 1H 1T 2H 2T. मतलब हेड को, पहले कॉइन के दोनों पॉसिबिलिटी को हमने
कनेक्ट किया डाई के हर एक पॉसिबिलिटी के साथ. सो हेड वी विल राइट विथ 1 2 3 4 5 6 एंड टेल वी विल राइट विथ 1 2 3 4 5 6. सो इन दिस वे हमें क्या करना है, ऐसे नंबर जो है और ऐसे आउटकम्स हम लिखने हैं 1H 1T 2H 2T up to 6H and 6T. Now you can count the number of elements present in the sample space. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So कॉइन के दो पॉसिबिलिटीज है एंड डाई के कितने पॉसिबिलिटीज है 6. So 6 into 2 हमें मिल जाएगा 12. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. कॉइन के कितने पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है और डाई के कितने पॉसिबिलिटीज है 6. सो नंबर ऑफ आउटकम्स आपको कितने मिलने वाले हैं 6 into 2 12. ओके, सो इन दिस वे अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि जितने भी हमने पॉसिबिलिटीज लिखे हैं वो सारे करेक्ट है और इतने ही है क्या नहीं, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो. सो हेंस हमने क्या लिखा, therefore n of s means number of sample points that is equal to 12 and hence the required number of sample spaces is 12. So in this way आपको आंसर लिखना है solution sample space along with number of sample points and finally आपको wording में भी लिखना है कि कितने number of elements present है sample space में. Okay, now we will go to the next question. सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे. ओके, सो two digit numbers are formed using digits 2 3 5 without repeating a digit. तो आपके पास तीन नंबर्स है और तीन नंबर्स के यूज से हमें क्या करना है, we have to form two digit numbers. ओके, तो टू डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें दो ही डिजिट लेने. हमारे पास तीन नंबर्स है लेकिन हमें क्या करना है, एक एक नंबर को दूसरे जो नंबर्स प्रेजेंट है उनके साथ हमें पेयर लगा के हम क्या करना है, we have to form two digit numbers. So let's see how to write the solution. So हमें क्या करना है, अब टू नंबर को रिमेनिंग टू नंबर के साथ हम लिख के हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं 2 3 2 5, देन 3 के साथ देन 5 के साथ. लेट्स सी व्हाट इज द सैंपल स्पेस. और हमें कौन सा भी नंबर रिपीट नहीं करना है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट. सो अगर आपने कौन सा भी नंबर यहाँ पे रिपीट किया तो सैंपल स्पेस अलग आ सकता है एंड रिपीट नहीं किया तो सैंपल स्पेस अलग आ सकता है. सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. यू हैव टू रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन ओनली यू हैव टू राइट द सैंपल स्पेस. सो सी हाउ वी विल राइट सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 3 2 5. एक नंबर हमने कांस्टेंट रख लिया और उसके साथ रिमेनिंग टू नंबर्स का पेयर हमने लगा लिया. देन दूसरा वाला नंबर फिक्स रखा और प्रीवियस नंबर के साथ और नेक्स्ट नंबर के साथ हमने उसका पेयर लिखा. और सिमिलर फॉर द लास्ट नंबर और लास्ट डिजिट. सो हमारे पास कितने नंबर्स मिल गए और कितने आउटकम्स है 2 3 2 5 3 2 3 5 5 2 and 5 3. So how many numbers are there or how many elements are there in the sample space? 6 numbers or 6 elements. So n of s means number of elements or number of sample points equal to 6 and hence the required number of sample spaces is 6. So number of elements in the sample spaces हमें कितने मिल गए 6. Now check कि अगर आपने digits repeat करके अगर आपने sample space लिखा तो आपको कितने numbers मिलेंगे. ये नंबर्स जो है यहाँ पे 6 नंबर्स वो तो आपको मिलेंगे, उनके साथ आपको मिलेंगे 2 2 3 3 5 5. अगेन 3 more numbers or 2 digit numbers you will get if condition was different or condition will be different. So in this way or in that case you will get total number of sample points in the sample spaces that is equal to 9. ओके, सो ये जो डिफरेंस है क्वेश्चन में वो आपको याद रख के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. Okay, so now we will go to the next question if you understood this question very well. Okay, so see the second question क्या है, the arrow is rotated and it stops randomly on the disc. Find out on which color it may stop. तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाया है और with the help of that picture you have to write all possible outcomes and number of possible outcomes. So see यहाँ पे एक उन्होंने डिस्क दिया है और उसके कितने पार्ट्स किए, टोटल 6 पार्ट्स किया और हर एक पार्ट में उन्होंने कलर का नाम जो है वो मेंशन किया है. और अगर आपने एरो रोटेट किया तो कितने पॉसिबिलिटीज है और कौन से नंबर पे कौन से कलर पे जो एरो वो स्टॉप हो सकता है. तो 6 नंबर्स आर देयर, सो 6 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर एंड द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज नथिंग बट द नेम्स ऑफ द कलर्स. सो लेट्स सी हाउ टू राइट सॉल्यूशन. सैंपल स्पेस इज इक्वल टू red, purple, orange, yellow, blue and green. So all colors which are present on the given disc we have to write in this sample space and we have to arrange these colors by using commas in between them and you have to write all these colors with the help of curly braces. So यहाँ पे हमें मिल गए हैं sample spaces red, purple, orange, yellow, green and blue. Okay, so how many colors are present in this sample space or how many number of sample points are there? So 6. You can count it.
सो फाइनाइट सेट है ये भी. सो n of s equal to 6 and therefore we will write the number of colors on which the arrow may stop is 6. So 6 possibilities है हमारे पास यहाँ पे. So 6 elements will be there in the sample space. Okay, now we will go to the next question. See, third question. So यहाँ पे भी उन्होंने एक पिक्चर दिया है. So मार्च जो है 2019. So इस मंथ का कैलेंडर का एक पेज उन्होंने यहाँ पे दिया है. So with the help of that हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. So see what is given. In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. 5 का मल्टीपल में जितने डेट है वो हमें चेक करने हैं और वो हमें लिखने हैं. कौन से डेज आ रहे हैं उस डेट पे तो वो भी हमें मेंशन करने हैं. See the given page of the calendar. See here the page is given. So हमें लिखने हैं कि नंबर ऑफ 5 के कितने मल्टीपल्स प्रेजेंट होते हैं एक मंथ में. So 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3. In this way you can calculate the multiples of 5. But last date जो होता है वो 31 होता है मार्च में. So 5 के कितने multiples यहाँ पे मिलेंगे. 5 into 1 5, then 10, then 15, then 20, 25 and last one will be 30. और इन dates के अंदर days कौन से आ रहे. ओके सो वो डेज भी हमें लिखने. 5 जब डेट आता है तो डे है ट्यूसडे, देन 10 पे है सैटरडे, देन 15 पे है फ्राइडे, देन 20 पे है यहाँ पे वेडनेसडे, देन 25 पे है यहाँ पे मंडे एंड अगेन 30 पे है यहाँ पे संडे. So let's see how to write the solution. So the dates are multiple of, or the dates multiple of 5 are 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Okay. So कौन कौन से days आ रहे हैं इसमें और इस date पे कौन से days आ रहे हैं. From the calendar we can observe on these dates the days fall are Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday and Saturday. So ये भी हमने चेक किया है. So total कितने days है. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 days है and dates जो है वो भी in number 6 है. Okay. So how we will write it. See, sample space we will write in the form of curly braces. Okay, so Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday and Saturday. All days we have written with the help of curly braces and commas. So n of s number of days that is equal to 6 and then the answer you will write. Hence the total number of days on which the date is a multiple of 5 is 6. So कितने number of days है वहाँ पे 6 dates है and 6 days हमें मिल रहे हैं यहाँ पे in month of March 2019. Okay, so I hope all have understood this question very well. We'll go to the next question, that is fourth question. See, form a road safety committee of 2. मतलब 2 ही उसमें मेंबर होने चाहिए. तो ऐसा रोड सेफ्टी कमिटी के लिए हमें क्या करना है, कमिटी फॉर्म करनी है रोड सेफ्टी के लिए. और हर एक टीम में कितने मेंबर होने चाहिए, 2 ही मेंबर होने चाहिए. सो फ्रॉम 2 बॉयज, 2 बॉयज है वहां पे और B1 B2 हम उसको कहेंगे एंड देयर आर 2 गर्ल्स. सो G1 G2 ऐसे सिंबल्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वो कमिटी फॉर्म कर सकते हैं. सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस. सो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को यूज करके हमें क्या करना है, कमिटी फॉर्म करनी है रोड सेफ्टी के लिए. सो जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं वो ऑल पॉसिबिलिटीज वी विल राइट एंड वी विल राइट द सैंपल स्पेस. ओके, सो सी ये जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो वन बाय वन वी विल सी हाउ टू फॉर्म अ कमिटी फॉर द गिवन क्वेश्चन. So committee of boys, अगर हमें सिर्फ if you want to take only boys in that committee, so only 2 possibilities are there, B1 B2, but we have to write the committee. So committee लिखना है तो हमें क्या करना है, दोनों boys को साथ में जब हम लेंगे तो एक उनका एक कमिटी फॉर्म हो जाएगा. तो कॉमा लिख के नहीं लिखना है, बस आपको लिखना है B1 B2. ओके, नाउ कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, वहां यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे उन्होंने कॉमा देके लिखा है बिकॉज देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. नाउ हमें क्या करना है, कमिटी फॉर्म करने से वी हैव रिटन कमिटी ऑफ 2 बॉयज दैट इज B1 B2. सो कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स कॉमा भी देके लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इट इज अ कमिटी. सो नाउ कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, दोनों गर्ल्स ही होंगे कमिटी में, तो आप कैसे लिखोगे, G1 G2. इफ यू वांट टू यूज कॉमास सो यू हैव टू यूज ब्रैकेट्स. जैसे कि हमने 2 डाइस अगर हमने थ्रो के तो उस टाइम हमने कैसे लिखा, 1 1 1 और 1 के बीच में कॉमा और ब्रैकेट के अंदर, मतलब ऑर्डर पेयर के हिसाब से लिखा और ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा. सिमिलरली अगर इसको कॉमा देके आपको लिखना है तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग B1 B2 यू कैन राइट B1 B2 in
सर्कल, मतलब इन सर्कुलर ब्रैकेट्स पे फॉर्म में आप लिख सकते हो। ओके, नाउ कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, सो G1 G2 कमिटी हो जाएगी फॉर्म, अगर 2 ही गर्ल्स हमें चाहिए वहां पे। नाउ कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, सो 1 बॉय और 1 गर्ल अगर हमें लिखना है तो बॉयज हमारे पास है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो हर एक बॉय का पेयर हम दूसरे जो गर्ल्स है तो हर एक गर्ल के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका पेयर लगा सकते हैं। सो कैसे लिखना है, अगर पहला बॉय हमने सिलेक्ट किया B1 तो दूसरा सेट जो है गर्ल्स का उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं गर्ल को G1। सिमिलरली बॉय का अगर हमने फिक्स रखा तो दूसरे गर्ल के साथ भी उसका पेयर लगा सकते हैं, हाउ वी विल राइट इट, B1 G2। सिमिलरली अब दूसरे बॉय का जो पेयर है वो दोनों गर्ल्स के साथ कैसे लिखेंगे हम, B2 G1 एंड B2 G2। सो इन दिस वे हमने क्या किया, कमिटीज फॉर्म के, अगर कंडीशंस है 2 ही बॉयज चाहिए 2 ही गर्ल्स चाहिए और एक बॉय एक गर्ल का कंडीशन है तो उसके लिए कितने पॉसिबिलिटीज है वो भी हमने लिख ले। सो ऑल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने आ सकते हैं इफ यू वांट टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 2 पीपल फॉर द रोड सेफ्टी। सो सैंपल स्पेस वी विल राइट, सो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है सैंपल स्पेस, जगह कम थी वहां पे इसलिए। सो देखो, सो इसमें जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें प्रीवियस रिजल्ट्स में मिल गए, सो ऑल दोस पॉसिबिलिटीज वी विल राइट हियर। सो B1 B2 देखो यहाँ पे करली यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज किया, सर्कुलर ब्रैकेट्स, कॉमा नहीं दिया है लेकिन हर एक एलिमेंट अलग दिखने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। सो इन द करली ब्रेसेस वी विल राइट B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड B2 G2। सो इन दिस वे टोटल सैंपल स्पेस हमने लिख लिया, यहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट कर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सैंपल पॉइंट्स इन द गिवन सैंपल स्पेस ऑफ रोड सेफ्टी कमिटी विल बी 6। सो टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स आपको इस केस में मिल सकते हैं। Okay students, so I think all questions from the practice set 5.2 we have solved in this today's session. So अगर आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगता है, आपके पढ़ाई में हेल्पफुल यूजफुल लगता है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे आपके पढ़ाई से रिलेटेड अगर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। और आपके कोई सजेशन है, आपके कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चंस और कितना कंटेंट जो हमने इस सेशंस के थ्रू सीखा वो कितना समझ में आ गया। ओके, तो आज की इस सेशन में यही रुकते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो एंड खुद का हेल्थ का ख्याल रखो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय एंड टेक केयर।